yesterday we had discussed about static and final keyword. उसमें किसी को कोई doubt? We'll continue with that and start with inheritance today. Any doubt in yesterday's topics? No, ma'am. Static keyword, final keyword समझ में आ गया था? We've just got 2-3 small topics in this chapter, then we'll move towards inheritance. Right, थोड़ा सा string class के बारे में हम देखेंगे because since we are starting with classes and objects and we had discussed about the primitive data types in Java, right? So we had discussed about 4 categories हमने देखा था, right? Your number type, your float data type, boolean, right? Character, जो कि आपके primitive data types थे. Other than that primitive data types we talked about, we have got your क्लासेस देयर जिसमें से सबसे कॉमनली यूज्ड आपके क्लास कौन सी स्ट्रिंग हैंडलिंग हम अलग से भी पढ़ेंगे बट since we are discussing the classes and objects then I think we should also talk about when very commonly used class which is your string class, right? How did we handle strings in C++? Anyone would like to give a brief? C++ में string को कैसे हैंडल करते थे? स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते थे? हम कैरेक्टर टाइप एरे रहता था एग्जैक्टली हाँ आपका कैरेक्टर टाइप्स रहता था कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग राइट यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग इज आपको एक क्लास की तरह अवेलेबल है जिसकी वजह से यू हैव सम बिल्ट इन मेथड्स which can be used for for performing various functionalities जो भी आप उस पे बिहेवियर अप्लाई करना चाहते हो जो भी आप चीजें वर्क आउट करना चाहते हो so it is available to you as a class, right? One very important thing about string in Java is that even if it is being declared as a constant, जैसे अगर आप simply print statement डालो जिसमें string को as a constant pass कर रहे हो, then too it is considered to be an object, right? An object also which type? Most important thing, it is an immutable object. Immutable का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार string का object आपका create हो गया, right? Its contents cannot be changed. आप इसकी contents को change नहीं कर सकते हो. Why is it what do you ये immutable का मतलब क्या हुआ क्यों क्यों ऐसा हम रखते हैं anyone would like to give a brief समझ में आया immutable objects क्या होते हैं immutable object सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो उसमें जो भी आपने वैल्यू असाइन करी जो भी आपने उस वेरिएबल को उसमें वैल्यू डाला इट कैन नॉट बी म्यूटेटेड इट कैन नॉट बी चेंज उसकी इंटरनल स्टेट आप किसी तरह से भी अपडेट नहीं कर सकते हो right so similarly string also is considered to be an immutable type of an object first most important thing is that unlike any other languages which you studied before here string is available to you as a class which has a number of predefined methods for you to use right अब उन methods बहुत सारे several methods string class support करती है जिनको आप use कर सकते हो जिनको हम जब string handling पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे जैसे आपका बहुत कॉमन टाइप का अगर बात करी जाए तो लेंथ सबसे ज्यादा यूज होता है राइट यू कैन iterate a loop to its length right you can find any character किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के कैरेक्टर निकालना है आप इसमें इक्वालिटी चेक कर सकते हो if two strings are equal or not so there are number of methods available because here it is there present to you as a class right so whenever it is a constant then too it will be considered as an object and what kind of object it is an immutable type of object right immutable means once it has been created you cannot change its content ठीक है तो ये क्यों हम स्ट्रिंग क्लास को इम्यूटेबल रखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इज सिक्योरिटी राइट इसका बहुत आपका यूज रहता है सिक्योरिटी में व्हेन वी आर यूजिंग यूजुअली क्या होता है जितने भी आपके पैरामीटर्स हम पास करते हैं बिटवीन different methods like these can include sensitive information such as your यूजर नेम्स हो सकते हैं पासवर्ड्स हो सकते हैं यूआरएल हो सकता है या किसी फाइल का नाम हो सकता है राइट so there's when they are being passed as parameters right
इट इज पॉसिबल कि जहाँ पे जिस मेथड में आपने उसको कॉल करा है आप उसकी वैल्यू कहीं पे चेंज कर दो, अपडेट कर दो, तो इन दैट केस आप किसी अनट्रस्टवर्दी सोर्स को उसको उसको नहीं शेयर कर सकते उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, इफ स्ट्रिंग वाज इफ इट वाज म्यूटेबल, राइट। सो वन आप अनरिलायबल कोई भी अनरिलायबल अगर आपका कॉलर मेथड है जिसका आपके पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, बिकॉज यू नो व्हेन वी आर पासिंग objects as parameters, it is called by reference। आप उसका reference पास करो जिसकी वजह से आपका object भी update हो सकता है, right? So when we are passing some important information such as SSH, username, passwords, URL, some important file names as string object, और तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जिस सोर्स के पास, जिस कॉलर मेथड के पास हम भेज रहे हैं, इट कैन स्टिल हैव दैट रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट। सो वी हैव मेड इट इम्यूटेबल, विच मीन्स कि अगर आप जिस टाइम पे इसको जहाँ पे ये वैल्यू स्ट्रिंग के आप रिसीव कर रहे हो, इवन इफ इट इज एन अनट्रस्टवर्दी कॉलर मेथड, अगर वो कोई भी वैल्यू उसकी अपडेट करता है तो कहीं पे भी आपकी एक्चुअल वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका एक नया कॉपी बन जाता है, एंड इन दैट न्यू कॉपी विल आपका जो अपडेटेड स्ट्रिंग है एक नए लोकेशन पे, एक नए मेमोरी एड्रेस उसको मिलेगा और आप उसको रेफर करोगे, और जो ओरिजिनल उसका रेफरेंस है that will stay as it is, right? So because of the security concerns, string objects are considered to be, मतलब are kept to be immutable in Java. Another important thing is that for faster execution, हम स्ट्रिंग को एक पूल की तरह रखते हैं कैशिंग पर्पस के लिए। वी हैव अ स्ट्रिंग पूल, एंड व्हेनेवर वी आर यूजिंग द सेम, मतलब इसका एक स्पेशल मेमोरी रीजन आप एक तरह से कह सकते हो, जावा स्ट्रिंग पूल जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे सारी स्ट्रिंग टाइप्स के जो भी आपकी स्ट्रिंग्स रहती हैं वो जेवीएम स्टोर करता है, राइट। इससे क्या रहता है, आपकी जो मेमोरी एलोकेशन रहता है वो काफी ऑप्टिमाइज रहता है, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर जो लिटरल है, जो भी आपका, जैसे आपने हेलो वर्ल्ड लिखा या आप दिस इज अ स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे आपने लिखा, तो उसकी बस एक कॉपी मेंटेन करी जाएगी, राइट। एंड ऑल द वेरिएबल्स, राइट, विच आर मेकिंग यूज, आप इसी स्ट्रिंग लिटरल को वो यूज कर रहे हैं, राइट, दे विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो वन एस्पेक्ट इज डेफिनेटली सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आप स्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा हमारी यूज होती हैं एज ऑब्जेक्ट, आप उसको कई जगह पे मेथड्स में, अनट्रस्टवर्दी मेथड्स में भी आप पास करते हो, right? So we do not want those methods to affect our source method, right? जहाँ मतलब आपका जो source string है, जहाँ पे जिसे आप पास कर रहे हो, हम वहाँ पे कोई भी अपडेशन नहीं चाहते हैं, right? Because it may happen, मान लिया आपने कहीं पे मेथड में आपने पास करा कोई भी यूजर नेम पासवर्ड, और उस मेथड में that username password is being updated, तो in that case जो ओरिजिनल है that will get lost, that is a huge security concern. Because of that, we have kept the string class to be immutable, right? And another thing is that इसका string आपका एक special memory location पे store रहता है, special memory region पे store कर रखता है by your Java JVM, right? Such that जिससे कि आपका जो memory allocation है एक ही copy आपके पास रहेगी, तो काफी optimized रहता है। उस string pool में से जो भी वेरिएबल उसको सेम लिटरल स्टोर करना चाहता है, तो उनको बस एक उसी का ही रेफरेंस दे दिया जाता है। इसी की वजह से अगर आप उसको अपडेट कर रहे हो, इफ यू आर अपडेटिंग द स्ट्रिंग, देन सो दैट योर ओल्डर वेरिएबल, जो अगर कोई दूसरा वेरिएबल उसी लोकेशन को रेफर कर रहा है तो उसकी वैल्यू इफेक्ट ना हो, इसलिए आपका अपडेटेड जो भी अपडेट आप करो, न्यू लोकेशन मेमोरी विल बी क्रिएटेड विच जिसका आपका रेफरेंस रिटर्न कर दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं जो भी स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड्स है हमारे पास, विच कैन हेल्प अस लाइक टू लोअर टू अपर, आप जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू अपडेट कर रहे हो, राइट, या कोई सब स्ट्रिंग निकाल रहे हो, तो ऑलवेज इट विल रिटर्न यू अ न्यू रेफरेंस, जिसको आपको एक नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। इवन इफ यू स्टोरिंग इन द ओल्डर पुराने वेरिएबल में अगर आप अपडेट कर रहे हो तो एक नए लोकेशन पे वो स्टोर हो जाएगा, पुराना जो आपका लिटरल जहाँ पे पड़ा है वो एज इट इज रहेगा। तो स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड टू बी, मतलब फर्स्टली इट इज अ ऑब्जेक्ट टाइप, राइट, आपको एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग क्लास आपको जावा में प्रोवाइड करता है, and once it is created, its values cannot be changed, it cannot be updated for security purpose, for optimized memory allocation। and another थोड़ा सा हम देखेंगे synchronization के बारे में, जब अगर if we get time we'll be starting with multi threading, right? So it is very easy for multiple multiple threads to access the strings, right? and we don't have to हमें इतना
उसके इन सिंक्रोनाइजेशन का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है। मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ जो रन कर रहे होते हैं वो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इट इज टोटली थ्रेड सेफ। तो तब थ्रेडिंग, जब मल्टी थ्रेडिंग की बात करेंगे तब हम थोड़ा इसको देखेंगे। So these are one of the reasons why string is considered, string is given to you as a class in Java and as an immutable object. हमारे पास उसके अलावा भी कुछ कुछ और क्लासेस हैं स्ट्रिंग के अवेलेबल, जो थोड़ा सा हमें स्ट्रिंग को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको ऑल्टर करने की परमिशन देते हैं। तो व्हेन विल बी स्टडिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग मोर इन डिटेल, तो हम थोड़ा स्ट्रिंग बफर उन सब क्लासेस के बारे में भी देखेंगे, राइट, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रिंग क्लास बट its values can be altered or changed, right? सिंपल है। आपको स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हो? एज ए आप कोई भी लिटरल डबल कोट्स के विद इन में डालिए और कोई भी स्ट्रिंग क्लास आपका अवेलेबल रहता है, उसका टाइप का वेरिएबल डिफाइन करिए, डिक्लेयर करिए एंड यू कैन असाइन द वैल्यू देयर, राइट। सिमिलरली यू कैन प्रिंट स्ट्रिंग एज कांस्टेंट, पास इट, आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ये तो आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल, right, and this will return, मतलब आप दोनों स्ट्रिंग को concatenate करें, it will hold a new memory location which can be stored in our object strOb3, right? Then we have some since it is there, as I told you, methods आपके पास बहुत से available रहते हैं जिनको आप use कर सकते हो, such as equals method, जो आपके दो string objects को के कंटेंट को इक्वल है या नहीं उसको कंपेयर करने के लिए यूज करा जा सकता है, right? We will be seeing what is the difference between equals and double equal to, right? उनमें दोनों में हमारा difference रहता है, right? Please mute yourself, right? Then आपका कैरेट है, लेंथ है, ये सब कुछ जनरल मेथड्स हमारे पास स्ट्रिंग क्लास में अवेलेबल रहते हैं, जो कि उनका काफी यूज रहता है, right? Because we are studying string, right? जैसे यहाँ पे आपका लेंथ का बताया कि अगर हमें एक स्ट्रिंग टाइप का एरे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एरे, सो सिमिलरली हियर वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे व्हिच इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, उसमें दो तीन वैल्यूज हैं, राइट? उसके लेंथ तक के जाके वी कैन प्रिंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे, right? Is it clear what is a string class, what are the methods available there and why we are keeping it? Immutability का मतलब समझ में आ गया कि string class objects immutable क्यों रखते हैं हम? Immutable का मतलब क्या है? Just go through it. If there is a doubt, then we can discuss in next class, right? Then another small topic is there is when we were, जैसे हमने जब string आपका public static void main हम देख रहे थे, we had seen that we were passing a parameter string type of array, string args, ठीक है, हम arguments pass कर रहे थे, right, in that main method, right? So if we want to pass certain arguments from the command line, then through to the main method, so we have please come with your actual names for the class. Someone is joining with some M2 Pro. अपने actual names आइए क्योंकि attendance उसी से आपकी रहती है. If we want to pass some arguments to the command line to the main method, right, to Java, उनको कैसे हमें एक्सेस करने की परमिशन देता है? It is passed as a string type array, right? हमें ये पता है कि सबसे पहले अगर आपका प्रोग्राम रन होता है तो the main method is the point where your जो रन टाइम है आपके प्रोग्राम को एंटर करता है, स्टार्ट करता है, right? So if you want to pass some parameters from the user, right, हम कुछ parameters यूजर के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू पास करना चाहते हैं, तो we have an option through the command line arguments, right? Main method में हम as parameters pass करें तो we can access those parameters or the arguments which are being given through the command line, right? और ये हमारे पास कैसे स्टोर रहते हैं? They are stored in the form of a string array, राइट? हमारे पास स्ट्रिंग एरे रहता है, तो आप एक जो भी आर्गुमेंट्स आप चाहे स्पेस से या एंटर से आप सेपरेट करके भेज रहे हो, उनको आप स्ट्रिंग एरे की इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, राइट? सिंपल args स्ट्रिंग टाइप का एरे है, आपने एक लूपिंग चलाया 0 से लेकर लेंथ ऑफ दैट एरे तक, एंड we can access the arguments which are being passed from the command line with the help of this
ARGS array। तो आपका जो भी मेन मेथड है, राइट, जिसके थ्रू आपका रन टाइम एनवायरनमेंट आपके मेथड को, आपके क्लास को एग्जीक्यूट करता है, राइट, in that you can pass the command line arguments in the main method, and also you can access it with the help of index, right? So यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग की तरह ही ये सारे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पास होते हैं। तो अगर आपको मान ली कोई नंबर टाइप या इंटीजर टाइप वैल्यू एक्सेस करना है, तो वी हैव टू परफॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप कन्वर्जन, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यूज में हमने देखा था, जब टाइप कन्वर्जन करने के लिए एक्सप्लिसिटली आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो हियर आल्सो you need to specify, मतलब आपको टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करना पड़ेगा if you're taking arguments other than your string type. Is it clear till now? Command line arguments, string class, string arrays. Then coming to arrays, एक हमने तरीका देखा कि अगर right, then we have another feature in Java which is known as variable length arguments, right, जिसको हम varargs भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमें जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं उसकी लेंथ नहीं पता है, राइट, वी डू नॉट नो द लेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस varargs। फिर उसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, सिंपली आपको जो मेथड है, right, if you want to pass the varargs as parameters, you just write the type, right, followed by 3 dots and variable name, राइट। अगर हमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को पास करना है, तो एक तरीका हमारे पास क्या रहता है कि हम उन एलिमेंट्स को एरे में डालें और एरे को आप पास कर दें, राइट। बट देयर द लेंथ ऑफ द एरे यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास, राइट। बट इन देयर आर सिचुएशंस वेयर वी डू नॉट नो, कि हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो आता है जहाँ पे हमें पता नहीं है कि जो मेथड में हम वेरिएबल्स या आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, right, we do not know it the number of arguments. For that we have this variable length arguments feature in Java, जिसमें आप arbitrarily any length of arguments को आप पास कर सकते हो, राइट। हो सकता है इसके कई सारे यूज रहते हैं, जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हो, राइट, जिसमें आपका राइट, जिसमें जिसमें आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो, फाइल नेम डाल रहे हो, राइट, देयर मे बी सम अदर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, यू डू नॉट नो एग्जैक्टली नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास इनटू द मेथड। सो फॉर दैट केस हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स पास करने के लिए वी हैव दिस डेटा टाइप, यू कैन से सिंपली आप मेंशन कर दीजिए कि इज इट int boolean whatever it is, and followed by 3 dots. 3 dots mean these are the variable arguments, जहाँ पे maximum आपको number of potential arguments अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह से प्लेस कर सकते हो, राइट। इज इट क्लियर? दूसरा तरीका हमारे पास क्या रह सकता था, अगर हमारे पास ये वेर एज ना हो तो तुम क्या करते, we would have to pass it as an array, तभी आप collection of elements को भेज सकते हो ना। बट in array also you should be knowing the length, right, आपके maximum कितने number of elements आप store कर सकते हो, या तो आप यूजर से number of elements लो, उस size का array declare करो, then you pass it to the your method, right। But another a better efficient way in which is provided by your string is with the help of your varargs, जहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने पास कर रहे हैं, अगर वो नोन नहीं है तो आप उसको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स की तरह पास कर सकते हो, राइट। एंड व्हेन आई हैड टोल्ड यू टू गो थ्रू द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एक टाइप का स्पेशल लूप था जो उस टाइम हमने मतलब अगर आपने देखा हो, सो आई वांटेड टू डिस्कस इट सेपरेटली आल्सो, फॉर ईच वर्जन लूप, राइट। हमारे पास एक फॉर ईच टाइप का लूप रहता है। फॉर ईच में क्या रहता है, सिंपल, अगर आप फॉर लूप करते तो क्या रहता है, यू नीड टू हैव अ काउंटर, राइट। आप कैसे करते थे, i इक्वल टू 0, राइट, i इज लेस देन इक्वल टू, अगर मान ली कोई एरे है, you have to take it to the length of array or size of the array, right, उसके लेंथ तक के आपको जाना पड़ता था, and then used to increment i, right, i plus plus, फिर आप उस array के एक एक इंडेक्स के थ्रू एक एक एलिमेंट को निकालते थे, राइट, लेंथ हो या जो आपका साइज ऑफ द एरे n है, राइट। देन
AI आप एक्सेस करते थे। नॉर्मल हमारे पास ये तरीका तो रहता है एलिमेंट्स ऑफ एन एरे को अगर हमें ट्रैवर्स करना है, but in from Java 5 we had a special kind of loop called the for each version loop। for loop का ही तरह है जहां पर आपका इंस्टेड ऑफ आपको यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग, इसमें दो स्टेप्स आपके इन्वॉल्व है। पहले आप एक काउंटर डिफाइन करो, फिर आप इस काउंटर के थ्रू अपने एरे की इंडेक्स डाल के उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करो, राइट। बट हियर योर फॉर ईच टाइप ऑफ लूप ऑटोमेट्स दिस प्रोसीजर, राइट। ये जो तरीका है आपको अलग से एक लूप काउंटर स्पेसिफाई करने का और उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू डालने के लिए डालना पड़ता था। फिर उसके बाद आप एरे की एक एक इंडेक्स को मैन्युअली इटरेट करते थे थ्रू दैट लूप, राइट, थ्रू दैट एंटायर साइकिल, राइट। बट इट इज अ शॉर्टर वर्जन। हमारे पास फॉर ईच लूप एक हमारे पास शॉर्टर वे है फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे या कोई भी कलेक्शन टाइप अगर हमारे पास वेरिएबल है, राइट। जो इटरेबल वेरिएबल्स हैं हमारे पास कलेक्शन के, वी आल्सो हैव द एरे लिस्ट एंड all these collections also other than your arrays, right। अगर हम उसको iterate करना चाहते हैं instead of specifying the counter and then going through the index of मतलब एक एक element को index के through manually access करना, तो for that alternate way is with the help of for each version। for each version हमने क्या कर दिया, सिंपली जिस टाइप का कलेक्शन है आपका, जैसे हमारे पास यहाँ पे आप एरेज के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। हमारा वेरिएबल जो वेर आर्ग है वो किस टाइप का है, इन टाइप का है, राइट। तो वी जस्ट सिंपली डिक्लेयर अ वेरिएबल एक्स, ठीक है, इंटीजर टाइप। जिस इस वेरिएबल एक्स में क्या क्या वैल्यू आएंगी, आपकी एक एक आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी वी के, से वी आई, v1, v0, v2, ये ऐसे इटरेट करेगा, राइट। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी करता जाएगा, फर्स्ट टाइम v0 देन v1। In this way, for each loop can be used for accessing the elements of a collection type data, जैसे कि array हो या vararg हो या कोई array list हो, राइट। आप उनके एक एक एलिमेंट को डायरेक्टली, अब x को आपने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करा, तो यू आर एबल टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन टाइप ऑफ डेटा। तो ये vararg समझ में आ गया। और ये for each loop कंट्रोल डेटा स्ट्रक्चर्स में बाकी तो आपके कॉमन ही रहते हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच लूप आपका थोड़ा अलग है, जावा वर्जन 5 से आपके पास अवेलेबल था, जो कि रिमूव्स दिस टू स्टेप्स कि पहले आप काउंटर डिफाइन करो, फिर मैन्युअली यू हैव टू इटरेट टू द इंडेक्स ऑफ द इंडेक्स के थ्रू आप ट्रैवर्स करते हुए आ रहे थे। तो इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट? फॉर ईच वर्जन ऑफ द फॉर लूप समझ में आ गया, वेरार्ग समझ में आ गया, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस करे कैसे हम मेन मेथड में कमांड लाइन के थ्रू अगर आर्गुमेंट्स को पास करना है तो वी कैन पास इट, एंड वेयर आर दे केप्ट। ये आपका जो स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग args एरे आपने जो डिफाइन करा है एज पैरामीटर आपने मेन मेथड में पास करा है, इसमें आपके कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जाते हैं और यहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हो, इसमें स्टोर हो जाते हैं आपके स्ट्रिंग टाइप में and you can access it। But again string type का array है, so if you want any other values such as integer and numeric values, for that we have to perform the type conversion for it। तो उसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। बाकी स्ट्रिंग हैंडलिंग और डिटेल में बढ़ेंगे, बट यू शुड नो दैट स्ट्रिंग इज अवेलेबल टू यू एज अ क्लास, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लास इट इज, कंप्लीटली इम्यूटेबल। मतलब एक बार आपने वैल्यू क्रिएट कर दी, डिक्लेयर कर दिया, its value cannot be altered or updated। अगर आप चेंज कर भी रहे हो तो it will be created at a new memory location and you have to keep its value। आप इसकी वैल्यू रेफरेंस मतलब जो भी वेरिएबल में उसमें डाल रहे हो, it will point to a new location instead of being updated। जो आपकी स्ट्रिंग जहाँ पे ओरिजिनल पड़ी होगी वहां पे आपका कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, राइट, कि हम कोई अनट्रस्टवर्दी सोर्स में मेथड में अपने पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, देन दे शुड नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस इन द सोर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग, राइट। एंड अदर देन दैट सिंक्रोनाइजेशन में हेल्पफुल रहता है स्ट्रिंग पूल, जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड वे जेवीएम यूज करता है फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग्स, जहाँ पे एक टाइप के स्ट्रिंग लिटरल को एक ही लोकेशन मेमोरी लोकेशन दी जाती है, एंड डिफरेंट वेरिएबल्स अगर वो सेम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग लिटरल को डिक्लेयर करते हैं तो उनको सिंपली उसका रेफरेंस रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रिंग के इम्यूटेबल रहता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स आपका
कवर्ड है कि व्हाट इज क्लासेस, ऑब्जेक्ट, स्टैटिक कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड। ठीक है, थोड़ा हमने एक्सेस कंट्रोल के बारे में देखा था, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, राइट। फिर एक आपका डिफॉल्ट रहता है जो आउटसाइड द पैकेज भी आपके क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना अलाउ करता है, राइट। देन वी हैड सीन डिफरेंट, बाकी चीजें तो आपके मेथड ओवरलोडिंग एंड all these concepts are similar to your C, C++. Is it clear till now what all things we discussed in classes and objects? Then we can move to inheritance. Is it all right? कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. We'll start with inheritance now. इनहेरिटेंस के बारे में तो आपने थोड़ा सी में भी पढ़ा होगा, तो बताएंगे इनहेरिटेंस क्या होता है? Ma'am, inheritance provides a reusability, that means driving the properties and characteristics of another class into a हाँ, बिल्कुल class. सही बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे। और इट इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जो ऊप्स के 3 प्रिंसिपल्स हमने देखे थे, राइट। एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस बहुत मतलब ऊप्स का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देना है, राइट, हमें, और आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम को कम करना है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्लोज रखना है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज योर रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो हमें रीयूजेबिलिटी भी दे रहा है, और हमारे पास क्या है, एक हायरार्कियल एब्स्ट्रैक्शंस है। ठीक है, हायरार्कियल इन द सेंस कि आपके पास क्या रहता है कि आप एक क्लास की, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अक्वायर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। एंड इन व्हाट वे, एक हायरार्कियल क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। दिस इज लाइक अ वेरी कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। जब भी आप इनहेरिटेंस पढ़ो कि जैसे हमारे पास एक एनिमल क्लास है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सच एज योर वेट, एज, जेंडर, ऑल दीज थिंग। उस एनिमल के विद इन हमारे पास कई सारी सब क्लासेस आ सकती है। एनिमल क्या हो जाएगा, हमारा सुपर क्लास हो गया जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, राइट। सर्टेन एस्पेक्ट, सर्टेन प्रॉपर्टीज आ गए, राइट। मैमल क्या हो जाएगा, एक उसका सब क्लास हो जाएगा। मे बी अनदर सब क्लास कैन बी बर्ड्स, अनदर सब क्लास कैन बी एम्फीबियंस, एक आपके सी क्रीचर्स हो सकते हैं, राइट। तो आपका इनहेरिटेंस का क्या मतलब, यही आपका है कि आप एक एक हायरार्कियल एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, राइट। कि आप जिससे कि आपका एक सुपर क्लास रहता है और कुछ आपके सब क्लासेस रहते हैं। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सपोर्ट करता है वेयर वन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे हमारे पास एक एनिमल क्लास है जो कि एक लार्जर क्लास है, उसके विद इन हमारे पास कई सारी सब क्लासेस हो सकती है, जिसमें से एक आपका मैमल सब क्लास है, राइट। सो विदाउट अगर हमारे पास ये एक हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ना होता तो हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनिमल क्लास की थी, जब हम मैमल क्लास में इनको यूज करना चाहते हैं तो हमें दोबारा से इनको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ता, हमें दोबारा से इनको डिफाइन करना पड़ता। बट दीज आर द जनरल एट्रीब्यूट जो कि आप पेरेंट से ही इनहेरिट कर सकते हो, राइट। तो without explicitly specifying these characteristics again for the sub class, एक हमने इनहेरिटेंस, हमारे पास एक मैकेनिज्म दिया गया है जिससे कि हम एक जेनरिक क्लास से वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ दैट जनरल केस। जैसे एनिमल एक आपका जनरल केस हो गया, उसके एक स्पेसिफिक इंस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, मैमल हो गया, राइट। सो दिस ये कैसे, मतलब एक तो आपका जो नेचुरल वर्ल्ड को जैसे आप व्यू करते हो, राइट, ये जिस तरह से हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं एट्रीब्यूट्स के, राइट, इससे ये काफी क्लोज है। दूसरा डेफिनेटली रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड रहता है, आपको दोबारा से ये सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सिंपली यू कैन इनहेरिट दिस एट्रीब्यूट्स फ्रॉम योर पेरेंट क्लास, राइट। एंड इनहेरिटेंस दूसरा क्या है, हमको एक इनकैप्सुलेशन का भी, जैसे मैं आपको बताया, इट इज एन हायरार्कियल एब्स्ट्रैक्शन का एक हमको तरीका दे रहा है। तो डेफिनेटली एक गिवन क्लास है जो कि कुछ एट्रीब्यूट्स को इनकैप्सुलेट कर रही है, राइट। जब जो सब क्लास है वो उन एट्रीब्यूट्स को तो इनहेरिट कर ही रही है, प्लस इट कैन ऐड सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स ओन।
तो ये हमारे पास क्या है, एक जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, राइट। सो लीनियरली हमारी एक एक हमारा हमारा ग्रोथ चल रहा है, वी आर ग्रोइंग, हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियरली ग्रो करती जा रही है, जैसे जैसे हम पेरेंट क्लास से सब क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं। वी आर इनहेरिटिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंसेस्टर्स, जो भी उसके प्रीवियस पेरेंट क्लास है, सो वी आर एबल टू इनहेरिट इट। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जावा में इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस जो होता है वो लीनियरली ग्रो करता है, right? Itna, so it reduce some complexity, right? And we will see through some examples how your Java is supporting inheritance. Right, you have support for multiple inheritance, लेकिन उसका हमारे पास तरीका क्लासेस के थ्रू रहता है। जब हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो we can take properties from different, मतलब दो क्लासेस से हम प्रॉपर्टीज नहीं इनहेरिट कर सकते, बट हम एक क्लास और एक इंटरफेस के अलग अलग प्रॉपर्टी मतलब अलग इन दोनों को हम इनहेरिट कर सकते हैं। सो वी विल बी सीइंग, थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ऊप्स का आपका कॉन्सेप्ट है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है, राइट, जिससे कि आप एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है, राइट। एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास बहुत चीजें क्लियर होंगी, राइट। तो एक हमारे पास क्या रहती है, वी हैव द क्लास जिसकी आप प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपर क्लास, एंड जो आपका एक जेनरिक केस रहता है, फिर आप स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ द सुपर क्लास जो बनाते हो, राइट, जो कि आपके पेरेंट क्लास या जो सुपर क्लास है उनके एट्रीब्यूट्स को तो यूज करता ही करता है, अदर देन दैट इट कैन ऐड इट्स ओन यूनिक एलिमेंट्स, right? So that is called your subclass, right? And in Java, how we are performing incorporating inheritance is with the help of your extends keyword. हमारा जो extends keyword है उसके थ्रू आपका सब क्लास सुपर क्लास के को की प्रॉपर्टी जो भी क्लास उसके मेंबर्स हैं which are specified उनको इनहेरिट कर सकता है। Again here your access control will play an important role. Access control जो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था पिछले चैप्टर में, तो यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे हमने बताया था आपका एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर रहता है, then you have protected access specifier. So these provide you with some control over what all members can be accessed by the other classes. जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे इनहेरिटेंस के में हम कौन से members of the parent class को किस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। सुपर क्लास जो है वो अपना एज इट इज तो एग्जिस्ट करता ही करता है, अब उसके आप ऑब्जेक्ट बना ही सकते हो। अदर देन दैट जो सब क्लास है, राइट, दिस सुपर क्लास का आपको आपके एट्रीब्यूट्स को आप इनहेरिट कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन मूव फ्रॉम अ मोर स्पेसिफिक केस फ्रॉम द जनरल केस, राइट। तो आप कैसे बनाते हो, जो भी आपकी सब क्लास है सब क्लास का नाम डालते हैं, क्लास सब क्लास नेम फॉलोड आपका ये एक्सटेंड्स कीवर्ड है which is used to tell कि आप दूसरी किस सुपर क्लास की एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रहे हो। तो आपका क्या तरीका रहता है, सिंपली you specify the name of the subclass followed by the extends keyword and then you name your super class name जिसकी आप प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हो, राइट। एंड हियर एज आई सेड इट इज सपोर्टिंग ओनली सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल सुपर क्लासेस आपको इनहेरिट करना जावा सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ओनली वन सुपर क्लास फॉर एनी सब क्लास यू कैन create, right? And also no class can be a super class for itself, right? ये हमारे पास जावा स्पेसिफिक कुछ दो तीन केसेस मतलब आप कह सकते हो फीचर्स हैं ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, कि आपका मल्टीपल सुपर क्लासेस नहीं हो सकते हैं फॉर अ गिवन सब क्लास, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट हैव अ क्लास बी इट्स ओन सुपर क्लास, दैट इज नॉट सपोर्टेड, राइट। अगर सिंपल सा एग्जांपल देखें, एक हमारे पास पेरेंट क्लास है ए, राइट, क्लास ए है हमारे पास जिसमें दो आपके मेंबर्स हैं इंट आई एंड जे, राइट। हमने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डाला है, तो इट विल बी योर डिफॉल्ट वन, राइट। विद इन दैट वी हैव अ सिंपल मेथड शो आई जे जो क्या कर रहा है, आई एंड जे की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, राइट। नाउ वी आर डिक्लेयरिंग अ सब क्लास, राइट, क्लास बी जो क्या करेगा, इस क्लास ए के जो भी एट्रीब्यूट्स मेंबर्स हैं उनको इनहेरिट करेगा। ये कैसे हमने बताया, विद द हेल्प ऑफ extends keyword, right? We are creating a subclass B which is going to extend your class A, right? Within that
अब इसने अपने और स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, जैसे यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट के कर दिया, राइट, जिसमें भी हम सिंपली शो के कर रहे हैं, जस्ट प्रिंटिंग इट्स वैल्यू, एंड अदर देन दैट वी आर परफॉर्मिंग समेशन ऑफ 3 वैल्यूज, राइट, आई जे एंड के। आई एंड जे वैल्यूज कौन सी है जो इसने क्लास ए से इनहेरिट करी, और के वैल्यू कौन सी है जो इसने अपने इसमें और ऐड करी है, राइट। सो इट इज definitely allowing you reusability and also in a hierarchical way, right, जहाँ पे सब क्लास आपके सुपर क्लास के मेंबर फंक्शंस को, मेथड्स को और वेरिएबल्स को एक्सेस करता है। Just all of you mark your attendance and we'll move forward. Attendance सब लोग chats में डाल दीजिए, last 2 minutes अभी। इस एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट? सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक पेरेंट क्लास है ए, एक No. सब क्लास है बी, राइट। हम इस पेरेंट क्लास के या सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। अदर देन दैट वी कैन आल्सो क्रिएट सम स्पेशलाइज्ड वर्जन। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ऐड कर दिया के, right, and we can use the variables which are defined in your parent class, declared in your parent class. Other than that we can add the new variable which has been आपका सब क्लास में आपने जो वेरिएबल ऐड करा है उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो रेपिटेशन हमको जरूरत नहीं पड़ी, we can simply get the properties of the parent class, but parent class cannot use its variable, right। तुम्हारे पास एक लीनियर वे में, आपका लीनियर फैशन में ये hierarchical abstraction perform करा जा रहा है with the help of your inheritance, right। We will see another example.